Hello everyone, I hope you all are doing good. Today we are going to study about the citizenship. Before moving further, let me ask you a simple question. Can every person living in India contest election, vote in election or become the president or vice president or the prime minister of India? Your answer would be no, because these are the rights available only to the citizens of India. This is the reason why we need to understand the concept of citizenship. So what actually is a citizenship? Citizenship is a legal membership of a country. Only the citizens of India have the constitutional right, civil right and the political right. मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि एक फ्रेंच गाय है, he is currently in India. He will get all the right and he will be protected by the Indian laws which is available to all the people residing in India. So this French guy is currently residing in India, but he is not a citizen of India. Now, the provision of the citizenship is mentioned in Part 2 of the Indian Constitution, and it deals with Article 5 to Article 11 of the Indian Constitution. Here you have to remember that India allow only a single citizenship. The reason behind a single citizenship is that it promotes the national unity, national integrity and the equality among all the citizens of India. This is the reason why we adopted the single citizenship just like the United Kingdom. Moving further, we should understand the difference between citizens and the alien. There are two types of the people, that is the citizen and another one is the alien. I have already told you citizens are the people who have all the political right, constitutional right and the civil right. They are considered as the full member of the Indian state. In polity, alien means foreigners. They are the citizens of other state or other country and they do not enjoy all the civil and the political right. Alien are of the two types. One is friendly alien, second is enemy alien. Friendly alien are those citizens of the country who have good relation with India. Enemy alien are subject of the country at war with India. इनके रिलेशन इंडिया के साथ अच्छे नहीं है. दैट इज वाई दे डू नॉट हैव द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन विच कम्स अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द फंडामेंटल राइट. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एलियन दैट इज ए फॉर्मर एंड द सिटीजन. मूविंग फर्दर, the right granted to the citizens of India. There are certain rights which are granted only to the citizens of India. That is Article 15, 16, 19, 29 and 30. Article 15 deals with the right against discrimination on the ground of the religion, race, caste, sex or the place of birth. Article 16 deals with the right to equal opportunity in public employment. Article 19 deals with the freedom of speech or expression, freedom of assembly, freedom of association, freedom of movement, freedom of residence and freedom of profession. So it gives freedom in chief aspect. Article 29 and 30 deal with the cultural and the educational right. These are the rights given to the citizens of India. I have already told you right to vote and contest election is also given to the citizens of India. These are not available to the aliens or the foreigners. Eligibility to hold certain public offices such as the president, vice president, prime minister or any constitutional offices, these are only for the citizens of India. Constitutional provision. The Constitution deals with the citizenship. Constitution provides the citizenship under Part 2 of the Indian Constitution. It deals with Article 5 to Article 11. एक एक करके सारे आर्टिकल पढ़ लेते हैं. Article 5 talk about who become the citizen of India on the commencement of the Constitution. Here the commencement of Constitution. Here the commencement of Constitution means the Constitution came into effect on 26 January 1950, which is today also celebrated as the Republic Day. तो मतलब जो कोई भी जो पर्सन है ही विल कंसिडर एज द सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही इज बॉर्न इन इंडिया, इफ इधर पेरेंट्स वर बॉर्न इन इंडिया
or if he had been residing in India for at least 5 years immediately before 26 January 1950. आप इसको ऐसे समझो, एक पर्सन है, पर्सन एक्स है, ही इज रिजाइडिंग इन इंडिया फ्रॉम 1945 टू 1950. वो कंटिन्यूसली इंडिया में ही रिजाइड कर रहा है, वो रह रहा है इंडिया में, then he will here be considered as the citizen of India. Moving further, Article 6 talk about the people who have migrated from Pakistan to India. यहाँ पे है पाकिस्तान टू इंडिया. देखो, इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ इन 1947. तो मिलियन ऑफ पीपल वर माइग्रेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया एंड इंडिया टू पाकिस्तान. तो आर्टिकल 6 टॉक अबाउट द पीपल हु आर माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया. और जो पाकिस्तान से इंडिया आए हैं उनको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए थी. तो उसके पीछे भी 2 कंडीशन थी. आप ये वाली डेट को याद रखो, 19 जुलाई 1948. पहला कंडीशन ये था कि 19 जुलाई से अगर कोई पहले आता है इंडिया में, ही विल बी ऑटोमेटिकली कंसिडर्ड एज दी सिटीजन ऑफ इंडिया. बट इफ ही इज कमिंग टू इंडिया आफ्टर 19 जुलाई 1948, देन ही हैव टू रजिस्टर हिमसेल्फ. अब क्वेश्चन ये आता है कि यह 19 जुलाई 1948 क्यों है? बिकॉज ऑन दिस डेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड द परमिट सिस्टम, इसलिए यहाँ पे 19 जुलाई 1948 है. नेक्स्ट इज आर्टिकल 7. आर्टिकल 7 डील्स विद द पीपल हु आर माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान. यहाँ से क्या है, यहाँ पे इंडिया से पाकिस्तान गए है. कोई पर्सन है, अगर उसको इंडिया से पाकिस्तान जाना है, कुछ टाइम वो पाकिस्तान में रहता है एंड देन ही वांट्स टू कम बैक टू इंडिया. अब वो वापस आ रहा है. इफ ही गेट्स द permit for the resettlement from the government of India, then he will be considered as the citizen of India. This is Article 7. Next is Article 8. It deals with the people of the Indian origin. वो Indian origin है, but he reside in India. If he wants to become a citizen of India, then he had to register himself at the Indian embassy. उसको रजिस्टर करना पड़ेगा सिटीजनशिप लेने के लिए at the Indian embassy. This is for the PI, person of the Indian origin. Next is Article 9. Article 9 उन लोगों से डील करता है who had acquired the citizenship of the another country. आप ऐसे समझो जैसे मैं हूँ, मेरे पास कैनेडियन सिटीजनशिप है, अगर मैं वो ले लेती हूँ, वो एक्वायर कर लेती हूँ, तो मेरी जो इंडिया की सिटीजनशिप है दैट विल ऑटोमेटिकली बी रिवोक. Article 10. Article 10 deals with the citizen will remain the citizen as subject to the parliamentary law. Article 11. Article 11 gives the power to the parliament to make the citizenship law, and because of this article only, parliament enacted the Citizenship Act 1955. Okay. The next is acquisition of the citizenship. We can acquire the citizenship of the India in 5 ways, that is by birth, by registration, by naturalization, by descent and by incorporation of the territory. सबसे पहले पढ़ते हैं by birth. पहले यहाँ पे ये डेट देख लो, 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, इसलिए यहाँ पे ये डेट लिखा है. दूसरा है 1 जुलाई 1987. इससे पहले क्या होता था, इंडिया में बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट आ रहे थे फ्रॉम द नेबरिंग कंट्री. तो इंडिया मतलब इनैक्टेड या अडॉप्टेड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1986 विच केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 1987. तो यहाँ पे भी 2 कंडीशन है. अगर कोई बिफोर 1 जुलाई 1987 इंडिया में रह रहा है तो ही विल बी कंसिडर्ड एज द सिटीजन ऑफ इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी ऑफ हिज पेरेंट. बट अगर आफ्टर 1 जुलाई है तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए ईदर ऑफ हिज पेरेंट, बी इट मदर और फादर, दे हैड टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया. ओनली देन ही विल गेट ए सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय बर्थ. सेकेंड इज रजिस्ट्रेशन. दूसरा ये है कि
इंडियन ओरिजिन को रजिस्टर करना पड़ेगा अगर उसको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, बट ही हैव टू रिजाइड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 7 ईयर बिफोर अप्लाइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन. अ पर्सन हु इज मैरिड to an Indian citizen and ordinarily resident for the 7 years before applying for the registration. किसी ने शादी करी है, किसी फॉरनर ने यहाँ इंडिया में शादी की है एंड ही इज रिजाइडिंग इन इंडिया कंटिन्यूसली फॉर द 7 ईयर, ही कैन अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन फॉर द इंडियन सिटीजनशिप. नेक्स्ट बाय डिसेंट. डिसेंट मीन सिटीजनशिप थ्रू पेरेंट. यहाँ पे याद रखने का है 26 जनवरी 1956 में है कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं तो तक 10 दिसंबर 1992 का ये है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है इट गॉट चेंज. इसके पीछे रीज़न ये है कि आप इसको ऐसे समझो 10 दिसंबर 1992 से बिफोर एंड आफ्टर. 10 दिसंबर 1992 से पहले क्या होता, क्योंकि सिटीजनशिप मिलती थी बट इट विल बी बेस्ड ओनली ऑन दी फादर. मतलब अगर आपके पापा इंडियन सिटीजन है ओनली देन यू विल गेट द इंडियन सिटीजनशिप. बट आफ्टर 10 दिसंबर 1992 में क्या हुआ कि ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वर एडेड, बिकॉज पहले ना 10 दिसंबर था तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था कि सिर्फ फादर के बेसिस पे ही आपको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी, तो यहाँ पे वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था. इसलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1992 जब ये आया उसके बाद आफ्टर 10 दिसंबर 1992 ईदर ऑफ इट पेरेंट शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, ओनली देन द पर्सन विल बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया बाय नेचुरलाइजेशन. A person can acquire the citizenship by naturalization if he is residing in India for 12 years. इंडिया में रह रहा है वो 12 साल के लिए. और भी कुछ कंडीशन है. कंडीशन जैसा ये है, अ पर्सन शुड बी ऑफ द गुड कैरेक्टर, अ पर्सन शुड नो एटलीस्ट 1 लैंग्वेज मेंशन्ड इन द 8th शेड्यूल. यहाँ पे है 8th शेड्यूल का कोई एक लैंग्वेज पता होना चाहिए. अब 8th शेड्यूल में 1990s में ओनली 14 लैंग्वेजेस एडेड थे 8th शेड्यूल में, बट करंटली 8th शेड्यूल में देर आर 22 लैंग्वेज एंड हेयर यू हैव टू रिमेंबर इंग्लिश इज़ नॉट इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल. जैसे इसमें मैं एग्जांपल दे सकती हूँ कि मदर टेरेसा है, शी गॉट दी इंडियन सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन. नेक्स्ट इज सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी. When any territory become a part of India, the resident of that territory automatically become the citizen of India. अब आप ऐसे देखो, जो गोवा है, दमन है, दीव है, लिख देती हूँ गोवा, दमन एंड दीव. All these were under the Portugal rule. ये गोवा, दमन एंड दीव all were the under the Portugal rule, but in 1961 में क्या हुआ, इंडिया ने ऑपरेशन विजय बनाया. एंड दे acquired the गोवा, दमन एंड दीव एंड dispelled the Portugal rule. ओके, तो यहाँ पे क्या है कि गोवा, दमन एंड दीव जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले लिया था पुर्तगाल रूल से, तो फिर ये इंडिया में इनकॉर्पोरेट कर दिया था. सो द पीपल ऑफ द गोवा, दमन एंड दीव आर करेंटली द सिटीजन ऑफ इंडिया. Here you have to remember that India does not provide any dual citizenship. It only provide for the single citizenship. The reason for providing the single citizenship is that because it enhances the national unity, national integrity and equality among the citizens. Loss of the citizenship. There are 3 ways by which you can lose the Indian citizenship. That is by renunciation, by termination and by deprivation. If any citizen of India make a declaration that he wants to renounce the citizenship, then वो लॉस हो जाएगा सिटीजनशिप का. जैसे कि कोई ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, इफ ही डजंट वांट टू ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है एंड ही गॉट द ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप, तो वो इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली लूज कर ले. सेकेंड इज बाय टर्मिनेशन.
ऑटोमेटिक लॉज आफ्टर वॉलेंटरली एक्वायरिंग द फॉरेन सिटीजनशिप, किसी ने फॉरेन सिटीजनशिप एक्वायर किया है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो लूज हो जाएगा। बाय डेप्रिवेशन, गवर्नमेंट रिमूव द सिटीजनशिप ऑन द ग्राउंड ऑफ द फ्रॉड, डिसलॉयल्टी, असिस्टिंग एनिमी ड्यूरिंग वॉर, सीरियस क्रिमिनल conduct. So here you have to remember that loss of the citizenship can be done by the renunciation, termination and the deprivation. Next is difference between the NRI, PIO and OCI. NRI stand for the non-resident of India. PIO stand for the person of the Indian origin. OCI stand for the overseas citizen of India. NRI कौन होते हैं? They are the people who are from India and have the Indian passport but they are currently residing in another country. उनके पास इंडियन पासपोर्ट है, वो फॉरेन सिटीजनशिप लेके नहीं बैठे हैं। पासपोर्ट इंडिया का है बट वो रहते बाहर है। तो ऐसे लोगों को क्या होता है कि वो उनके पास जो है सिटीजनशिप वो इंडिया का है, सिटीजनशिप इंडिया का है। सिटीजनशिप इंडिया का है तो वोटिंग राइट भी उन्हें मिलेगी, करेक्ट। कि पॉलिटिकल राइट भी उन्हें पूरे मिलेंगे क्योंकि वो इंडियन सिटीजन है। कि उनका जो स्टेटस है वो अभी भी चल ही रहा है। अभी भी बहुत सारे NRI है हु हैव इंडियन सिटीजन पासपोर्ट, हु हैव इंडियन पासपोर्ट एंड करंटली रिजाइडिंग अब्रॉड ड्यूटी जॉब्स। फिर अगला है PIO। PIO का मतलब ये होता है कि कोई पर्सन है ही होल्डिंग द फॉरेन सिटीजनशिप बट जो उनके एंसेस्टर्स है या उनके पेरेंट्स है दे हैव द इंडियन रूट्स या फिर इंडियन origin, they are known as the PIO, but they do not have any Indian citizenship, no voting right, no political right, and OCI has been merged in 2015 with the PIO. Here you have to remember that OCI and PIO have been merged together. अब OCI है, it comes under Citizenship Act 1955. They have no Indian citizenship, they have no voting right, they have no political right, and it continues today. These two have been merged. OCI and PIO have been merged today. This is very important. Citizenship Amendment Act. The Citizenship Amendment Act that was launched in 2019, it amended the Citizenship Act 1955. अब क्वेश्चन ये आता है कि ये अमेंडमेंट एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो, इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ इन 1947। जब पार्टीशन हो गया था तो इंडिया बिकेम ए सेक्युलर कंट्री, विच मीन दैट इन इंडिया ऑल द रिलीजन आर ट्रीटेड इक्वली, whereas in Pakistan it became the Islamic country. Moving further, Bangladesh also got liberated from Pakistan in 1971 and in Afghanistan it is also the Islamic state. तो जो ये अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है और बांग्लादेश है, यहाँ पे जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है, जैसे कि पाकिस्तान में हिंदूज़ हो गए, हिंदूज़ पाकिस्तान में माइनॉरिटी है, अफ़गानिस्तान में सिख हो गए और बांग्लादेश में बुद्धिस्ट हो गए। ये सारे यहाँ पे माइनॉरिटीज़ थे। दे वर फेसिंग द परसिक्यूशन एंड द डिस्क्रिमिनेशन इन देयर ओन कंट्री, so they were seeking the refugee from Indian government. तो इनको रेफ्यूजी चाहिए थे इंडिया में, इसलिए they were trying to come to India. तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर they were considered as the illegal migrant. बट जब ये आया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, तो यहाँ पे जो कंडीशन चेंज हुई है, like it states that illegal migrant meeting 4 conditions won't be considered illegal under the act. That is, they should be Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi and Christian. ये 6 है। इन लोगों को इलीगल माइग्रेंट नहीं कंसिडर किया जाएगा। मुस्लिम को हमने एक्सक्लूड किया है बिकॉज जो बांग्लादेश है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, यहाँ पे ऑलरेडी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर मुस्लिम ओनली। यहाँ पे माइनॉरिटीज़ को कंसिडर किया है हमने, यही लोग इंडिया आ सकते हैं। दे आर फ्रॉम द अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। तो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, ही शुड बी फ्रॉम द अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड द पाकिस्तान। दे केम टू इंडिया ऑन और बिफोर December 31, 2014। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कट ऑफ डेट ये सेट करी थी कि 31 दिसंबर 2014
को या फिर उससे पहले वो इंडिया आया होगा, देन ही विल बी कंसिडर एज द सिटीजन ऑफ इंडिया। यहाँ पे कट ऑफ डेट इसलिए दिया सो दैट इस टाइम पीरियड के बाद अगर कोई भी आ जाए, अगर इंडिया किसी को भी सिटीजनशिप की है, किसी को भी बेनिफिट्स किए, तो वो गलत हो जाएगा, फिर तो सभी आ जाएंगे अपना देश छोड़ के, फिर यहीं आ जाएंगे, तो इंडिया की पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, जो कि गलत है। इसलिए यहाँ के कट ऑफ डेट सेट किया गया था कि जो दिसंबर 31 2014 के पहले आया था और कुछ टाइम पीरियड के लिए इंडिया में रुका हुआ है, दे विल गेट दी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो हियर्स Citizenship Amendment Act were meant to address the pre-humanitarian issue. Pre-humanitarian issue को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लॉन्च किया गया था। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दे आर नॉट इन सर्टेन ट्राइबल एरियाज इंक्लूडेड इन चेक शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन और द एरियाज अंडर इनर परमिट लाइन। अब इसका मतलब क्या है, मैं आगे मैप बना रही हूँ, मैप से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये इंडिया का मैप है। पहले बात की थी 6 शेड्यूल की। 6 शेड्यूल में एक ट्रिक है याद रखने का, ATM2। ये कैसे याद रखोगे? असम, त्रिपुरा, मेघालय and Mizoram. These are the 4 states that comes under 6th schedule. ये जो सारे जो ये 4 है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, दे आर द ट्राइबल एरिया। यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती है, उनके ट्रेडिशन को, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को इनेक्ट नहीं किया गया है। पहला ये है 6th शेड्यूल। सेकेंड क्या था? ILP। ILP का फुल फॉर्म होता है इनर लाइन परमिट। जब इंडियन सिटीजन है बाकी स्टेट के, देर आर 28 स्टेट, राइट? तो 28 स्टेट में से जितने भी स्टेट है, अगर उन्हें इस ILP में जाना होगा, पहले मैं स्टेट बता देखिए कौन कौन के हैं। ILP में स्टेट आते हैं, ये यहाँ के जो 4 स्टेट है ना, ये आते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। ये 4 आते हैं। दीज 4 कम अंडर ILP, दैट इज इनर लाइन परमिट। मतलब हमें अगर इन चारों स्टेट में जाना है तो वी हैव टू गेट द ILP फ्रॉम द स्टेट, ILP फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टेट। मतलब हमें अगर वहाँ विजिट करना है, ऐसे नॉर्मली घूमना है एज ए टूरिस्ट, यहाँ वहाँ पे जाना है, तो वी हैव टू गेट दी ILP। अब ये 6th शेड्यूल ILP यहाँ पे हम लोगों ने CAA मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू नहीं किया है। वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज रिजाइड करते हैं, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, दे वांट टू प्रोटेक्ट द ट्राइबल कम्युनिटीज एंड देयर ट्रेडिशन। सो हियर ILP is not, so here CAA is not in these areas. They are not in certain tribal areas included in 6th schedule to the constitution or the areas under the inner line permit. Okay? ये हो गया। अब मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐड किए हैं, आई होप आप इसके आंसर कर पाओ। पहला क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द सिटीजनशिप? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इट इज पार्ट 2, आर्टिकल 5 to आर्टिकल 11. The answer is B. Single citizenship in India has been borrowed from UK, that is United Kingdom. Citizenship by naturalization is granted to foreigner fulfilling the prescribed condition, only NRI, only OTI, refugee automatically. Naturalization से जो सिटीजनशिप है वो किनको मिलेगी? फॉरनर फुलफिलिंग द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन। मैंने बोला था उनके कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, उनको 8 शेड्यूल में से कोई एक लैंग्वेज पता होना चाहिए। तो ये इसका आंसर है फॉरनर फुलफिलिंग द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस। लास्ट वन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया फॉलो अ सिंगल सिटीजनशिप, दिस इज करेक्ट।
Citizenship is mentioned in the union list. Yes, this is correct. List तीन टाइप के होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट, बट सिटीजनशिप इज अंडर द यूनियन लिस्ट. Parliament has the exclusive power to make law regarding the citizenship. Yes, this is correct because according to Article 11, Parliament can make law on the citizenship. So here all three statements are correct. आज के लिए बस इतना ही है. आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आ गया होगा और ये सेशन अच्छा लगा होगा. थैंक यू.